subtle colors बोलेंगे, cream color बोलेंगे, they not like that. They need those. आप उनके घर जाओगे तो आप देखोगे उनके घर में गोल्डन कलर के पेंटिंग्स, emboss paintings हो रही हैं, right? बिल्कुल चटक bright colors are there in their houses. They like those things. They like. So the reason why the sales were not happening because of the black color, and this is the real case which I'm discussing with you. The company decided to come up with different versions of colors for rural consumer, and then the sales picked that up. So none of you mentioned about color. All of you just thought कि हम सस्ता साइकिल दे देते हैं, competitor से सस्ता प्राइस कर देंगे. It's not necessary. Money is not necessary. That it will always be the money thing. Please understand. By selling a product affordable, it's not necessary your product is getting sold in the rural market. You need to understand who you are targeting to. Even a small thing like color can influence the buying behavior of rural consumer. There are many colors which are considered very sacred in certain religions, like for Hindu, saffron color, for Islam, green color. You cannot play with those colors also. You need to be very particular to which audience you are selling, which color you are selling. You have to understand all these things more for rural consumer because they have their feelings, sentiments attached more with these things. Is that clear? So this is what we are going to study now. The whole chapter is about rural consumer buying behavior. So I have already told you about, we had already discussed about the rural market evolution. कैसे in various decades your rural market has evolved. We have also talked about rural environment, किस तरह का education होता है, what kind of houses they have, what kind of families they have. We have discussed about that. I hope it is clear to all of you. Now we are starting a new chapter which is rural consumer behavior. The purpose to do that bicycle activity was just to give you an idea how a small thing influences the sale of a particular item. Now when we talk about rural consumer behavior, we need to understand that there are certain factors. कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे? आपके क्या फैक्टर्स होते हैं कि आप क्यों कोई प्रोडक्ट खरीदते हो? Similarly, there are certain governing points, certain pain points, certain issues like cultural factors, social factor, personal factors, psychological factors. These are the factors which will impact and which will influence the rural consumer to buy the product. Is that clear? So the first one is your cultural factor. Fine. When we talk about culture, fine. What is a culture? Kuldeep, what is the culture? For rural consumer, what is a culture? What do you understand by culture? Living practices. What living practices? Yes, प्रज्वल, आपके एरिया में क्या कल्चर होता है जो आपके एरिया में और आपको नोएडा में नहीं मिला? Is there any particular culture in your area जो आपको यहाँ नहीं दिखने को मिलता है? जैसे कि रीति रिवाज, कौन सा रीति रिवाज अलग है? आप सब लोग अलग अलग जगह से हो, अलग अलग लोकेशन, ज्योग्राफी, अलग अलग फैमिली से आपकी अपब्रिंगिंग है. सब लोग का अलग अलग फैमिली में अलग अलग कल्चर होगा. जहाँ आप रहते हो वो अलग अलग होगा. क्या अलग कल्चर है तुम्हारा? ड्रेसिंग सेंस. ओके. ऐसा नहीं, ड्रेसिंग सेंस विल नॉट कम. फूड हैबिट्स कैन कम. और कुछ No working lifestyle. बहुत ब्रॉड चीजें हैं. These are very very broad things. What is culture basically? Culture is the most fundamental determination of person behavior in rural India. As a child, when you are growing in a particular environment, you are acquiring certain set of values, perception, preferences, behavior toward the family and towards other institutions. So, आपके घर में या आप जिस माहौल में, are you fine with the language in English? So, आप जिस घर में रह रहे हो, whatever environment you are living into, there are certain practices which are being following in your houses. And as a child,
you knowingly or unknowingly you are getting affected or influences by those choices. कुछ लोग के घर में फीमेल जॉब करने नहीं जाती, वो बोलते हैं हम बेटी बहू की कमाई पे नहीं रहते, दैट इज देयर हाउस कल्चर, फाइन, तो वो नहीं प्रमोट करते. फिर जो बच्चे या जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, दे माइट नॉट बी वेरी एनकरेजिंग टुवर्ड्स फीमेल अर्निंग मनी. दे विल ऑल्सो प्रेफर कि उनकी वाइफ्स घर पे रहे या हाउस वाइफ करें. दो ये एक कल्चर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है. इज दैट क्लियर? कुछ लोगों के घर में पर्दा होता है, कुछ लोगों के घर में फीमेल्स नहा कर ही किचन में एंट्री करेंगी, है ना, उसके बिना नहीं एंट्री कर सकती. आप अपने घर से कितनी दूर हो तो देर आर सच, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो. आप अब यहाँ पर हो नोएडा में, एकादशी में लोग क्या कल्चर है, चावल नहीं खाते, राइट? आप यहाँ पर रहते हो, आपको चावल मिल रहा है, आप खा रहे हो, बिकॉज जितना आप अपने घर से दूर हो रहे हो, चीजों से दूर हो रहे हो, यू आर फाइन विद योर कल्चर, यू मोल्ड योर कल्चर, यू आर फ्लेक्सिबल विद योर कल्चर. ट्यूसडे थर्सडे को कुछ लोगों क्या कल्चर होता है, नॉनवेज नहीं खाते, एग्स नहीं खाते. कुछ लोग चेंज कर देते हैं, आज मैं ग्रेवी खा सकता हूँ, आज ये चलेगा, राइट? आज हो सकता. these are, so how you are doing all these things because it is on the basis of convenience. But for rural consumers, since they are staying in that particular area, since their exposure is less, since they are confined to those boundaries only, so they are very strict to that culture. उनको लगता है यही सही. कोई, आप एक बात याद रखिएगा, please understand, when you are going to do your job in rural market, you should not go and educate them. या तुम वहां जाके उनकी सोच बदलने नहीं गए हो कि मैं क्रांतिकारी जाऊंगा और मैं कुछ करूंगा और मैं, you are just going to go and sell your product. तुम किसी की सोच नहीं बदल सकते. तुम सोचो मैं अपने दोस्त की सोच, तुम नहीं बदल सकते. What you can do is you can tell them. Ultimately, what is their choice? They will only be doing it. Fine. So similarly, if you are going to the village and if you are seeing that there are certain practices which are not right, openly दिख रहा है, पर तुम उनको जाके समझाओगे, वो तुम्हारा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे और तुमसे बात भी नहीं करेंगे, because they are deeply rooted with the culture. आप क्यों चेंज हो रहे हो? क्योंकि आप दुनिया देख रहे हो. You are moving out. You are. This is a very big thing. Sitting in a classroom where there are people from such great demography, सब अलग-अलग जगह से हो, अलग-अलग religion से हो, अलग-अलग फेस्टिवल बनाते हो. This itself is a big thing. हर किसी इंस्टीट्यूशंस में नहीं होते, हर कोई इतना एक्सपोजर, ये खुद ही इतना बड़ा एक्सपोजर है. आपका पूरा बैच है जो आप रह रहे हो, यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट प्लेसेस, यू टॉक अबाउट योर कल्चर, यू हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होता ही है ना, सबकी लैंग्वेजेस अलग है. ये खुद ही इतना बड़ा एक्सपोजर है, which is much bigger than these books. क्योंकि when you know somebody from different culture, you understand कि अच्छा इनकी कल्चर में भी ये होता है तो ये भी सही है ना. जब आप बाहर क्यों बोलते हैं people, why do we say कि आपको travel करना चाहिए? What happens when you visit and you do traveling? You understand that there are people where these things are being followed. Now I'll give you example. I went to Bali. So there my guide told me that it is in their culture to fall in love and then get married. वो लोग arranged marriage करते ही नहीं है. Nobody promote arranged marriage. To get married, you need to fall in love. Now that is their culture. अब अगर हमारे यहाँ के थोड़ा regressive सोच के लोग होंगे तो वो तो बोलेंगे तो बहुत ही गलत चीज है. But when I listened to his point of view, he said to me कि मैडम शादी एक ऐसी चीज है जो तभी होनी चाहिए जब आप प्यार में हो. तो हमारे तो अगर प्यार नहीं है तो शादी होगी नहीं, चाहे आप बिना शादी के रहो. So you have to fall in love. You need to find your own partner, and it's a very small wedding ceremony. हमारी तरह नहीं दहेज चल रहा है, इतना शो ऑफ हो रहा है लड़की को इतना. So what is happening is, plus वहाँ पे बहुत strong patriarchy system है. Males are very important. Males होना ही चाहिए वहाँ पे. 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, जब तक मेल नहीं होगा, they keep on having kids. Most of the 5 पे stoppage होता है वहाँ पे. Otherwise, yes, it's a fact. I'm telling you, it's a patriarchy society. तो जब मैं वहाँ गई, then only I came to know about now their culture. Are you getting my point? Yes. So उनका perspective भी you understand. But for a villager who's throughout their life staying in a particular family infrastructure, in a boundary, in a mindset, वो लोग वही सोचते हैं, वही culture चल रहा है. So it is very difficult कि आप सोच रहे हैं इनकी पुरानी सोच है. उनकी पुरानी सोच है ही नहीं. उन्होंने जितना देखा है उसमें उनकी सोच बहुत अच्छी है.
ही वो है. That is the whole circle. So culture of rural consumer is very important. They will purchase your product influenced by their culture. उनका जो culture होगा, जो सोच होगी, जो perception होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपके कपड़े खरीदेंगे, मेकअप का सामान खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे, whatever they are comfortable to. Is that clear? Next comes the social customs. What are social customs? What are social customs? Social customs are socially accepted norms that have been practiced over a long period of time. Rural India, which is largely isolated from new practice and customs, they still follow those social customs. For example, अगर मेरा पैर प्रज्वल को टच हो जाता है तो हम क्या करते थे पहले? डू लाइक दिस, है ना? हम किसी तो ये करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं करूँगा तो मुझे बैकवर्ड समझेंगे या मुझे. तो people are leaving all these practices which they used to do earlier. ये क्या है? Social custom है. Thursday को बाल नहीं कटवाना, family में social custom है. Now these are something which you will be following strictly if you are staying with your family. If you are not staying with your family, तुम्हारा interview है कल, बाल कटवाने तो तुम कटवाओगे बाल. तो बोलोगे क्या फर्क पड़ता है यार? I have to get my hair cut. So you become as flexible, as easier, as open as you are moving out of your social customs. ऐसा कुछ नहीं है कि customs और social culture follow करना खराब है. It completely dependent upon कि किसको क्या हानि हो रही है. Simple सी बात है. अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो please follow your social customs and culture. There is no harm in that. I'm not saying. The next comes is traditions. What are traditions? Something which we follow by getting without From our family. without getting devoted to or Yes, so we are not asking. हमारे पूर्वज जो करते थे, हमारे पेरेंट्स जो कर रहे हैं, तुम अपनी फैमिली में वही करते हो. कुछ लोगों की फैमिलीज में होता है कि वो अपने देव पितृ, यू अंडरस्टैंड? कुल देवता. तो जब भी कोई स्पेशल घर में ओकेजन होगा, शादी होगी, बच्चा होगा, ये तो उनके दर्शन करने जहाँ उनके एंसेस्टर्स मंदिर होते हैं वहाँ पे लेके जाया जाता है. ये हमारे ट्रेडिशंस फैमिली वाइज है. सबकी फैमिली में, कुछ लोग की फैमिली बहुत स्ट्रांगली माना जाता है, कुछ फैमिलीज में नहीं माना जाता, कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को नहीं करते. तो ये हमारे आपके फैमिली वाइज ट्रेडिशंस है. कुछ ट्रेडिशंस, घर में ट्रेडिशंस होते हैं कि you know, ये तो इंडिया का ही ट्रेडिशन है that if anybody is coming as a guest in our house, so we treat them as God. We treat them as Atithi Devo Bhava. That is a tagline of Indian tourism also. Why? It is coming from our tradition. ये जो tagline भी हमारे tradition में आई है. चाहे आप घर पे रहें या ना रहें, आपके हॉस्टल में भी अगर कोई आपका गेस्ट आता है या कोई स्टूडेंट आता है किसी दूसरे कॉलेज से, आप पहले उसे चेयर तो दोगे ही बैठने के लिए. ये थोड़ी बोलोगे मैं, या आप उसे बोलोगे यार तू मेरे बेड पे सो जा, मैं किसी और के रूम पे जाके एडजस्ट हो जाऊंगा. That is always a basic thing which is there in Indians. हम इंडियंस के अंदर ये इनबिल्ट है because this is in our tradition. So these are our traditions. इसी तरीके से गांव में भी traditions होते हैं, long standing beliefs that are accepted true in nature. आपके भी कोई traditions होंगे, प्लीज बताइए. आपके एरिया में कोई ऐसे traditions हैं, आपकी फैमिली में जो ऐसे traditions हैं जो आप ही बनाते हो या कहीं नहीं होते? प्लीज शेयर. एनीवन? हाँ बताओ. मैम, अगर किसी फैमिली का जो फर्स्ट चाइल्ड है, हाँ. वो किसी भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस से उसकी डेथ हो जाती है, तो जो सेकंड मेल चाइल्ड होता है उसके राइट ईयर में पियर्सिंग करवाते हैं. ओके ओके. अच्छा, दिस इज न्यू टू मी. आई डोंट नो दिस. अच्छा, ये कहाँ पर है? सब जगह. सब जगह. यूपी में बहुत, हाँ यूपी में काफी जगह है. अच्छा ठीक है. और कुछ? और कहीं? हाँ आप बताइए हमको. हाँ प्लीज. हरियाणा साइड एक होता है, हर विलेज में खेड़ा होता है. खेड़ा. हाँ, उसे बोलते हैं, वहाँ जो बैल होता है उसकी पूजा की जाती है. हाँ. ये और कोई ट्रेडिशन? जानवरों से शादी. वो ट्रेडिशन थोड़ी है, हर कोई थोड़ी करता है. यस. हाँ बोलो, बताओ. मेरे गांव में जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती है, मुस्टैच का सेविंग नहीं कराते. अरे वो तो हिंदू में ही होता है. हाँ बट ये ट्रेडिशन ही है. और कुछ? हाँ बोलो भट्टाचार्य, आपको बंगाल के वहाँ कुछ होगा अलग? हाँ? क्या बोल रहे हैं? कौन है ये बदतमीज?
हाँ बोलिए। मैम डोंट टॉक इन दिस Wedding एजुकेटेड ceremony- लोग की तरह बात क्या करो ना, क्या बदतमीजी है ये। हाँ मैम हिंदू का जैसे वेडिंग सेरेमनी होता है, बंगाल का पूरा डिफरेंट है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द हाँ, बिगिनिंग you have a very different मतलब kind. मतलब डिफरेंट होता है। दुर्गा माँ के सामने तो जाके फिर आरती होता है पूरा हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, फिर शादी के टाइम मतलब हम लोग उसे बांग्ला में बोलते हैं बॉर्डन करना, बॉर्डन। बॉर्डन अच्छा। तो हाँ, तो वही है। और शादी के टाइम मतलब मम्मी नहीं देख सकती तो शादी पूरा अच्छा। जब मतलब हम लोग सिंदूर पहनाते, ठीक है, हाँ। पहनाते जब वही है हम्म, तो हम लोग मतलब Please don't talk. मम्मी लोग देख नहीं सकते, अच्छा। वही है सबसे इम्पोर्टेंट। सेरेमनी। लेकिन जैसे इंडिया में या ये तो हमारे भी होते हैं कि जो फेरे होते हैं वो पेरेंट्स नहीं देखते हैं, हाँ, उस टाइम चले जाते हैं। हाँ, तो वो है। तो हम लोग और उसे बंगला में शाद पाके वादा बोलते हैं उसे। हाँ। आपके जैसे बंगालीज, प्लीज, बंगालीज में ये भी कल्चर है कि फीमेल्स बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, मेल्स काफी आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ होता है और बहुत ऐसा फीमेल डोमिनेंस या मेल डोमिनेंस नहीं होता, बहुत इक्वलिटी को फॉलो करते हैं। हाँ, तो ये है व्हिच इज अ वेरी स्ट्रांग जैसे पहले में मैम हिंदू में एक प्लीज। होता है कि- हाँ हाँ, जैसे जो फीमेल पंडित होता है वो पहले नहीं था। फीमेल पंडित, हाँ अभी होता है बंगाल में। यू हैव फीमेल पंडित। Yes, ma'am, होता है। अच्छा। 2022 से ये चालू हुआ है तो इट्स काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव। इट्स वेरी प्रोग्रेसिव, यस। पहले नहीं था ये। हाँ, बताइए विशाल। मैम हमारे यहाँ तो मतलब बड़ों का पैर छूते हैं हम लोग। वो तो सब जगह होता है। वो तो आपकी अपब्रिंगिंग, घर में तो सबको ये होता ही है ना। और हमारे Sure. घर के अंदर कोई चप्पल पहन के नहीं जाता। अच्छा, दिस इज योर कल्चर, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन, और ये तुम्हारे घर का कल्चर है। हाँ हाँ जी। मुझे पता नहीं बाकी क्या होता है कि नहीं, और शादी में जब सारे पूजा पाठ वाला सेक्शन हो जाता है उसके बाद रात में जो बाराती होते हैं उनको घर वाले गाली देते हैं। बाराती को कौन सी जगह? एक सेकंड दीदा नहीं, कहाँ पे होता है? लड़के वालों को गालियाँ देते हैं सामने मुंह पे? एक सेकंड सुनने दो ना प्रिया। मैं वो ऐसे गाली नहीं है जो सॉन्ग टाइप में गाली। मैं सॉन्ग में शुरू में गाली देते हैं। हाँ, एक सेकंड आकांक्षा बोलो। शुरू में गाली दे रहा है। गालियाँ देते हैं? हाँ बोलो शादी पर तो ठीक है, वो तो मेरे को ही नहीं पता, मैं ही हाँ एक एक what is it? Get so excited. क्या बोलते हैं? नहीं मैम हमारे यहाँ गाली आप फैजल आप बताओ, आपके कोई कल्चर ट्रेडिशन कुछ डिफरेंट? सुधांशु। हाँ मेल और वुमेन्स में इक्वली रिलीजियस नॉलेज दी जाती है। अच्छा, बराबर की जो नॉलेज है वो प्लीज डोंट टॉक। सुन लो ना, सीख लो, क्या फायदा तुम लोग का एक साथ पढ़ने का। हाँ एग्जैक्टली आलिमान बोलते हैं। आलिमान, तो दोनों को इक्वल स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेल्स को ज्यादा दी जाएगी। ओके फाइन। एनी अदर? यस अक्षत। तुम क्लास में हो? तुम क्लास में हो? हाँ हमारे एरिया में ऐसा है कि जिसकी फेस्टिवल पे डेथ रहती है उसकी वो फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, okay. Now please come back. So these were the traditions. Find subcultures. What are subcultures? Subcultures are a group of people within a culture who have shared value system based on common life experiences या situation. जैसे कि ये बता रहा है कि ये इनका subculture है, वो वहाँ के लोग, उस कॉमन एरिया के लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दे आर रोस्टिंग वन ऑफ द साइड ऑफ यू कैन से यस ग्रुप, ओनली ग्रुप साइड, यस ओनली ग्रुप साइड। सो अतिथि देवो भव आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके अलावा कास्टिज्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके गांव में कास्टिज्म, एज आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। वी आर लिविंग इन 2025, बट वहाँ पे दुकान वाला, मंदिर में, शादियों में अभी भी बहुत कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। वो भी एक कल्चरल फैक्टर है,
Unka to purchase your product, which is caste. Next comes a social class. What is social class? When you are dividing your people on the basis of occupation and income. तो जो शहर होते हैं जब हम उसमें सोशल क्लास करते हैं तो we can divide our population on the basis of occupation and income. But for rural consumer, we cannot do that. Tarun, please explain why. Ma'am, like, because in a community, people like it's from our past, people think like few people are superior than the others. So they. क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या पूछा मैंने? नहीं, ये नहीं पूछा मैंने. तो लैपटॉप बंद करें आप. Yes. शालिनी, what did I ask? क्या पूछ रही हूँ मैं? Yashwant, what did I ask? No. What did I ask? Anyone? Yes. In rural India, we cannot divide our population on the basis of occupation and income, which we do in urban area. I'm asking why. Why we cannot, Kuldeep? I don't know. What don't know? ऑक्यूपेशन और इनकम के बेसिस में आप गांव में क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? इसमें डोंट नो वाली क्या बात है? मैम सेम ही मैम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हम गाँव नो में. मधुर, व्हाई? क्योंकि मैम गांव में कास्ट के बेस पे डिवाइड कर देते हैं ना. नो, गाँव में यूजुअली सारे लोग के पास नहीं होता है, जैसे फार्मिंग कर रहा है तो उनकी यूजुअली एक तरह की जनरेशन वही चीज करती है. इन सत्य प्रकाश, बताओ व्हाई नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इनकम? कैटेगरी वाइज नहीं करते, सोशल क्लास में नहीं करते. वो पूछ रही हूँ क्यों नहीं करते? इनकम बिकॉज़ दे हैव ओन Very good. Yes. Next. in the basis of occupation they are more into multiple jobs. Very good. Yes. So what she's saying is absolutely right. Why we can't categorize our rural consumer in terms of occupation? Because they keep on changing their occupation. If today there is a farmer, then he is not only doing farming. When the season is not there, he may be a shopkeeper. He can go to the forest, collect wood. He can do rearing of cattle. Fine, there are multiple things which they are into. So उनका कोई fixed occupation नहीं है. Second is उनकी कोई fixed income का data कहाँ से लाओगे? Right? तुम्हारा डेटा निकाल सकते हैं हम क्या डेटा है. But for a rural consumer to have a fixed income, they are not filling income tax. They are not getting their, you're not getting their ITR receipt. So how you are going to get a fixed income? Most of the time, this is the major problem. When you will be asking their income, annual income, they will never give you the right answer. They will never give you, and there is no data to substantiate also. So when we are talking about social class, we cannot divide our consumer on the basis of these three parameters. We have come up with a classification for rural consumer which is known as socio-economic classification. तो जब आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते और इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते तो क्या आप किसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो? बताओ. ओके, और किसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो? आप इनकम पे नहीं कर सकते, ऑक्यूपेशन में नहीं कर सकते, कब पे? हाउसेस और मैम लैंड होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग और लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है वहां पे? यस, बताइए. व्हाट कास्ट? So what you can do here is, he is absolutely right. You are dividing your population on the basis of education of the chief wage earner. जो घर का मुखिया है, जो मेन सदस्य है, जो पैसा ला रहा है, वो कितना एजुकेटेड है? Is he college going or he is of higher studies, या 10th तक पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है? चीफ वेज अर्नर का एजुकेशन क्या है और किस तरह के घर में रहते हैं? ये क्लासिफिकेशन it came in the year 1980 in the rural India, and we have divided the rural population into 4 categories: R1, R2, R3, R4. Fine. So ये इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया, where they are saying if they are graduate, they are professional and they are living in pakka ghar, so they are in R1 category. If they are graduate, they are living in semi-pakka ghar, they are in R2 category. If they are graduate and professional, they are living in R3A category.
सो ऐसे करके इन्होंने अलग अलग मैट्रिक्स बनाए हैं और अलग अलग पॉपुलेशन को डिवाइड किया। इससे क्या फायदा हो रहा है प्रिया? व्हाट इज द रेलेवेंस? क्यों कर रही हो तुम ये बताओ? क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको? यस बोलो सत्य प्रकाश। टारगेट ऑडियंस ठीक करने के लिए। और कुछ एग्जाम बोलो? परचेजिंग पावर पैदा करने के लिए। और कुछ सुधांशु? ओके यस। See, there are people, so you can see that R1 category is very small, that is which are very educated and which are living in pakka houses. So when you understand this, what is the purpose of this is that R1 and R2, they are consisting of only 19% of rural population from the major consuming class. R3 and R4 are the 83% and they are relatively poor class. Fine. So when you are selling your seeds, when you are selling your fertilizer, you can easily tell in your summer internship report, अगर तुम लोग सुन रहे हो यहाँ पे कि आपका जो R1 है, R2 है या R3 है, किसको आप टारगेट कर रहे हो, कौन कितना एजुकेटेड है, it is easier for you to explain also. Is that clear? So जो देखा गया है, it is easy to read all the chief wage earner who are college educated, living in pakka houses, they are classified under R1. They are generally bulk buyers. ज्यादा थोक में सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है इनके पास, R1 के पास। They have much better money, पक्के घरों में रहते हैं, educated है, तो बल्क में सामान खरीद रहे हैं। कहाँ से? टाउन से खरीद रहे हैं। तो यानी R1 हमेशा कहाँ से खरीदेगा? टाउन से खरीदेगा। अगर तुम्हें R1 को कोई प्रोडक्ट पहुंचाना है तो टाउन में प्रोडक्ट होना जरूरी है। If your target audience is R1, is that clear? And they look for more variety. उनको ज्यादा वैरायटी चाहिए, एक प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, पैसा है ना उनके पास, so they will analyze the price, they will see more variety. So for R1 they need more variety. Is that clear? R2, R3 prefer to purchase from मेला, हाट्स, जहाँ वो मोल भाव कर सके, नेगोशिएशन हो सके, पैसे ज्यादा कम करा सके, बार्गेनिंग पावर उनकी इतनी नहीं होती, तो वहां से खरीदेंगे। तो अगर तुम्हें R3, R4 को कोई अपना प्रोडक्ट सीट बेचना है, वो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है, तो तुम्हें हाट में जरूर लगानी पड़ेगी अपनी दुकान। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो व्हाट यू नीड टू, व्हाट इज द यूज, हाउ यू कैन यूज दिस क्लासिफिकेशन? यू कैन टारगेट द राइट सेगमेंट फॉर अ प्रोडक्ट कैटेगरी व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट। जो आप 180% ऑफ आप लोग करोगे, अगर आप एक इनपुट पे काम कर रहे हो तो आप हमेशा डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, या आप एक्टिविटी करोगे ही करोगे, तब आपको क्लियर होना चाहिए कौन से फार्मर को आप टारगेट करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, दैट जो फार्मर R1 का है या जो रूरल कंज्यूमर R1 का बिहार का है, पंजाब का लगो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप खुद पढ़ रहे हो, इनके फैक्टर्स बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, तभी रूरल मार्केटिंग डिफिकल्ट है। अगर एक ही तरह का कंज्यूमर होता, जैसे कि अर्बन में पंजाब का भी ठीक है और ओवरऑल दे आर एजुकेटेड, दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, सो इट इज इजियर टू टारगेट। बट जो पंजाब का रूरल कंज्यूमर है वो अलग है, जो हिमाचल का रूरल कंज्यूमर है वो अलग है। सो R1 दो आप डिवाइड तो कर रहे हो, बट वो अलग होगा, माइंडसेट अलग होगा, कल वो ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उनमें। कंडक्ट व्हेन यू कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, जो आप SIP में करोगे, विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पोंडेंट सेगमेंट फॉर अ प्रोडक्ट कैटेगरी, आप बता सकते हो कि भाई मेरा तो टारगेट R2 है, वो सेमी पक्का घर में रहते हैं, वो इतने एजुकेटेड हैं, दैट इज व्हाई इट इज इजियर। प्लस आपको क्या मार्केट स्ट्रैटेजी अपनानी है, आपको किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है, वेयर यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव टू सेल, दैट आल्सो विल बी हेल्पफुल। इज दैट क्लियर? सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, एनी डाउट्स? नाउ बट आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, इसमें भी एक ट्विस्ट एंड टर्न है, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी टॉट यू दैट मेजॉरिटी ऑफ द विलेजर्स आर नाउ स्टेइंग इन पक्का घर, कच्चे घर हैं ही कितने, तो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज्यादातर एक वेरिएबल आपको खत्म हो गया, क्योंकि सभी पक्के घर में रह रहे हैं। सो व्हाट द मार्ट हैज स्टार्टेड डूइंग इज दे आर लिस्टिंग द नंबर ऑफ होम अप्लायंसेस एंड आइटम्स व्हिच यू हैव। सो अगर आपके घर में बाइक है तो 10 नंबर उसके, टेलीविजन है तो 5 नंबर उसका, ठीक है, प्रेशर कुकर है तो 2 नंबर,
आयरन है तो 1 नंबर. So they have given certain ratings to home appliances and items. So they go and check what are the items at their houses and then they give them rating. उस according marks wise they are putting them into R1, R2, R3, R4 categories. ठीक है, आप ये अपने internship में use कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छा of course काम करना है. You can use socio-economic classification. You can tell them that this is the extra thing which I have done, that I have classified by sample size on the basis of the kind of houses they have and what kind of education they have, and this will help us to target our seeds and fertilizer accordingly to the rural consumer. Is that clear? बाकी आपको कितना याद रहता है ये सब वो अलग चीज है. Next is another case study which is about हरियाली किसान. टाइम हो गया? Let's take a break. ब्रेक का टाइम ही नहीं है. 10 मिनट बाद है. So we after this we'll break. Please listen. So this is a small case about Haryali Kisan Bazaar. Fine. So this retail outlet, which is a rural retail outlet, ठीक है, जैसे शहरों में मॉल लगते हैं वैसे गांव में भी कॉन्सेप्ट शुरू किया है मॉल्स का, बट प्रॉपर गांव में नहीं लग रहे हैं, टाउन्स में लग रहे हैं, जिनसे गांव भी सराउंडेड है. तो वो प्रोग्रेसिव टाउन जिनसे गांव भी सराउंडेड है, where villages are also coming, वहाँ ये कॉन्सेप्ट हो रहा है रिटेल आउटलेट. तो हरियाली किसान बाजार पंजाब में एक प्रोग्रेसिव टाउन में सेट हुआ. When this was established over there, so आपकी जैसे ही वहाँ पे जो मैनेजर था, he started a tradition, he started a concept where he said that they will be every time a customer will be coming, you know गर्मी होती है, every time a customer will be coming to the retail outlet, they will be offering him or her a glass of water. And the moment they started doing this practice, they found out that the footfall in the retail outlet started decreasing. Now you tell me what could have been the reason कि पानी पिलाने से retail outlet में customers आने बंद हो गए. अक्षत, कैसा क्या हुआ होगा कि customers नहीं आ रहे अब after this practice? बताओ. ओके, हाँ हो सकता है, हो सकता है. यस, बताइए सुधांशु. इनकम लेवल से क्या पानी पिलाने वाला कौन है? अच्छा, और यस भट्टाचार्य कैसे? कास्ट का. कुलदीप. शिवम क्या कास्ट? कास्ट का वो तो हो गया, उसके अलावा तो कोई पॉइंट होगा, और कोई पॉइंट नहीं हो सकता. मैं पानी में फिल्टर अच्छा कैसे सोर्स कर रहा है? अच्छा में भी उनका एक बिलीव हो सुनने दो. हाँ बहुत सेवा कर रहा है तो जरूर महंगा होगा, मतलब ऐसा कोई बिलीव उनका. ओके यस. हाँ और कुछ? यस अंजू फिल्टर पानी बताओ. पानी फिल्टर में लगे. हाँ समझ सकते हैं. यस. और कोई पॉइंट नहीं आना तुम्हारे? अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, सबको ही पिला देते हैं. आप एंटर कर लो, देखो कि क्यों. हाँ बताओ. मधुर बोलते हैं फिल्टर वाला नहीं पिला बोलते हैं. गांव वाले अभी हाइजीन और सोशल लाइफस्टाइल और वीगन और इन सब पे नहीं पहुंचे. फिटनेस एंथुसियास्ट है. ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो ये यहाँ से हमें प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा. ये necessary. और कुछ? कौन सी समस्या खान तुम ऐसे मैनेज करोगे? एक को अच्छे ग्लास से पानी पिलाओगे, दूसरे ग्लास से पानी पिलाओगे, यही काम है तुम्हारा देखने का. इसको कौन से ग्लास से पानी पिलाना है, उसको कौन से ग्लास से पानी पिलाना है. यस. गांव के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे पानी पिला रहा है, इसमें कुछ मिला दिया होगा. अच्छा पंजाबी है वो, पंजाबी. इसलिए नहीं आते ऑफर कर रहे हैं और अच्छे लोगों वीडियो में हमारा स्टेटस जो हाँ हमारे स्टेटस से मैच नहीं करता होगा तो अच्छा उनको थोड़ा सा इनकॉम्पिटेंट. ओके
So what is happening is साइकिल सुन लो गर्मी में पानी पीने आ हाँ रहे थे क्या गर्मी में पानी पीने आ रहे थे ठंड में वो तुम ही करोगे गर्मी में पानी पी कर आ जाओगे what was happening was actually many of you what you said is absolutely right it was not the caste system it was obligation sales which was happening we had already discussed this thing in marketing I hope you remember कि सबसे ज़्यादा सेल कहाँ होती है डोर टू डोर में होती है when they are coming and they are trying to sell you something and they are coming at your houses and they always say sir देख लीजिए मैम देख लीजिए तो आप obliged हो जाते हो खरीदने तो क्या हो रहा था when they were offering them a glass of water अब अर्बन रूरल कंज्यूमर में अभी भी थोड़ी शर्म है थोड़ी सी वो है कि मैंने उसका पानी पी लिया है ना हमारी तरह बेशरम नहीं चाय कॉफी भी मंगवा लेते हैं बैठ जाते हैं फिर भी बोल देते हैं साड़ी अच्छी नहीं है अगली दुकान पे फिर दोबारा आके देखेंगे राइट सो व्हाट दे आर डूइंग इज उनको लगता है कि भाई अब इनका पानी पी लिया है तो कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा सो दे फील कि यार अब स्टोर में जाएंगे ये पानी पिलाएंगे एंड यू फील obliged then you have to purchase it so ये जो था ये जो प्रथा थी ये रूरल कंज्यूमर के लिए it was not considered very successful जैसे आप मॉल में जाते हो कभी कभी आपको नहीं खरीदना होता आप किसी शॉप में जाते हो दैट सेल्स पर्सन आपके आसपास घूमने लग जाता है बोलते हैं कौन सा साइज दिखाना है आपको ये इसमें कलर्स दिखाएं यू फील इरिटेटेड यू लीव आउट बिकॉज आपको लगता है यार इतना एनर्जी मुझ पे लगा रहा है बेचारा मैं तो कुछ खरीदना नहीं है ना मैं तो ऐसे आया हूँ टाइम पास करते दोस्त का वेट कर रहा था कपड़े देखने लग गया राइट हाँ एसी के हवाले में राइट प्रिया यस so what is happening is कि तो what is happening you're getting obliged you don't want to get obliged so similarly there also in Haryali Kisan Bazaar the farmers the rural consumer they were feeling obliged and they felt that they had to purchase something so they had to remove this practice कि भाई हमें पानी पिलाना ही नहीं है हमें कोई उन्हें ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना जिससे उन्हें लगे कि we are giving them certain special treatment and they feel obliged to purchase the product. They should come, they should see, they should do window shopping, whatever they feel like, but they should not feel obliged. Is that clear to all of you? Yes. Or yeah. Next comes is your social factors. So अभी हमने पढ़ा cultural factors. जिसमें हमने पढ़े ट्रेडिशन सोशल क्लास सोशल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस आपके कल्चर्स कस्टम्स नाउ वी विल बी स्टडीइंग सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं व्हाट इज हाउ इज द सोशल लाइफ ऑफ रूरल कंज्यूमर बताओ दिगेश हाउ इज द सोशल लाइफ अच्छा होता है व्हाट आर ओपिनियन लीडर्स तृप्ति व्हाट आर ओपिनियन लीडर्स मुखिया और विशाल who are opinion leaders जैसे कि मैम गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो मैम वो मान लीजिए किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं तो वो जो रिपोर्ट होती पढ़ नहीं पाते तो वो किसी न किसी को अपना मानते हैं वो एक लीडर के रूप में तो उससे जाके मैम वो राय देते हैं कि ये चीजें तो कौन है ओपिनियन लीडर वो ओपिनियन लीडर होता है जिसकी बातें बिलीव कर लेते हैं सब उसका कम्युनिकेशन अगर रीडिंग पावर यस मुस्कान कौन है ओपिनियन लीडर हम जो भी कम्युनिटी होती है सब कास्ट या कुछ भी मतलब अलग अलग वेरिएशन के लोग होते हैं तो उनका एक लीडर होता है हाँ ओपिनियन लीडर्स प्लीज चुप हो जाए हाँ क्या अच्छा थोड़े क्या आगे सो ओपिनियन लीडर्स हरीश तुम क्या कर रहे हो उसके ऊपर आधे टाइम तुम उसके ऊपर गिरे हो क्या कर रहे हो क्या देख रहे हो क्या हो सकता है मुझसे पूछ लो ना क्यों कैसे दूर तुम्हारी मैं हर बात पूछो मुझसे हाँ यस आपका ओपिनियन लीडर कोई भी हो सकता है आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो ओपिनियन लीडर दो तरह के होते हैं एक ओपिनियन लीडर होता है जो वर्बली आपको बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए ठीक है वो आपको खुद बोल रहा है कि भाई मैं फार्मर इज सेइंग कि मैंने प्रोग्रेसिव फार्मर कैन बी ओपिनियन लीडर सरपंच कैन बी ओपिनियन लीडर एक्स आर्मी पर्सन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैन बी टीचर नर्सेज
मिडवाइफ्स, आंगनवाड़ी, आप लोग भी ओपिनियन लीडर हो सकते हो। जब अगर आप किसी गांव में बिलोंग करते हो, आप नौकरी के बाद शहर में जा रहे हो, अपने गांव में जा रहे हो वापस, तो लोग आपसे पूछेंगे, आप भी ओपिनियन लीडर होते हो। अगर आप ओपिनियन लीडर कैसे बनोगे? जब आपके पास सक्सेस आएगी, जब आपके पास पैसा होगा या आपके पास पावर होगा। यही चीजें होती हैं जिसमें यूजुअली आप ओपिनियन लीडर होते हो, वरना कोई आपसे क्यों ओपिनियन लेगा? फेलियर से तो कोई ओपिनियन ही नहीं जाती। विच इज रिच, क्या बोल रहे हो? हाँ, ब्रेक ले रहे हैं ना, टॉपिक को बदलने के लिए दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। सो ओपिनियन लीडर्स आर बेसिकली दोस्त। ओपिनियन लीडर या तो आपको वर्बली बोल सकते हैं कि क्या करना चाहिए, या कई बार आप ओपिनियन लीडर्स की खुद लाइफस्टाइल देखते हो, and you get influence, like if you are like Virat Kohli, right, and whatever things he is doing, चाहे वो spiritually कर रहा है या fitness के लिए कर रहा है, तो you feel like following that। वो आके थोड़ी बोल रहा है तुमको कि तुम क्लीन करोली बाबा जाओ, वो गया तो सब लोग पहुंच गए, right? So what is happening? People follow opinion leaders। ठीक है, वो डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो लोग डेडलिफ्ट कर रहे हैं, वो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो people are focusing upon fitness। क्यों? क्योंकि वो उसने नहीं बोला है, he is so opinion leader completely dependent upon you। आप किसको अपना opinion leader बनाते हो, but opinion leader जो कर रहा है और जो बोल रहा है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ सुबह 5 बजे उठो, जल्दी उठो, और मैं खुद ही 12 बजे तक उठ रही हूँ, सिर्फ कप लगा के फोटो लगा के सोने चली जाती हूँ, पता चले ऐसे हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ? मैं सोई तो रही हूँ रास्ते में आते हुए, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ? तो क्या करें इसको? हाँ, करता नहीं है, तो कई बार क्या होता है, हम लोग किसी को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, हम बोलते हैं वाओ कितना अच्छा है, सोशल मीडिया पे कितनी अच्छी है सोशल मीडिया। जब आप मिलते हो तो आप बोलते हैं ये था जिससे मैं इन्फ्लुएंस हो रहा था। सो द पॉइंट, मैं भी फैक्ट बोल रही हूँ आपको, ऑफ कोर्स मैं सोती नहीं हूँ, उठती हूँ तो उठती हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो आई कैन नॉट प्रीच व्हाट आई एम ट्राइंग टू। दैट्स ऑल। प्लीज टेक अ ब्रेक, कम बैक आफ्टर 10 minutes।